مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ کلمہ حق کو سنایا ہے خلیل اللہ نے، ظلم کو جڑ سے مٹایا ہے خلیل اللہ نے، اور زلزلہ ایوان باطل میں تصدق آ گیا، زلزلہ ایوان باطل میں تصدق آ گیا، حق کا جب نعرہ لگایا ہے خلیل اللہ نے، حق کا جب نعرہ لگایا ہے خلیل اللہ نے، اور ابتلائے رب تعالیٰ میں رہے ثابت قدم، ابتلائے رب تعالیٰ میں رہے ثابت قدم، خواب کو سچ کر دکھایا ہے خلیل اللہ نے، خواب کو سچ کر دکھایا ہے خلیل اللہ نے۔ حضرات، یقیناً ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی یاد منا رہی ہیں اور ان کی محبت میں محفلوں کا اہتمام کیا ہے۔ بابا ہو میرے بہت ہی بہترین عمدہ خطاب آپ کو سننے کو ملے گا، نعت خوانی بھی سننے کو ملے گی۔ حضرت مولانا مشتاق صاحب قبلہ کا بھی بہترین عمدہ خطاب سننے کو ملے گا۔ مختصر وقت میں مختصر گفتگو، اور مختصر گفتگو میں سیرت ابراہیم کی کچھ جھلکیاں سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نام سب نے سنا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں اور کوئی معمولی انسان بھی نہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست قرار دیا، اپنا خلیل بنایا، اور دوست سب دوستی کے قابل نہیں ہوتا، دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کے لائق ہوتا ہے، ورنہ آج کے دور میں بے شمار ایسے دوست ہیں جو بجائے اچھائی کے غلط راستے پر لے جانے والے دوست ہوتے ہیں، بھلائی کے علاوہ نقصان پہنچانے والے دوست ہوتے ہیں، لیکن نیکی کی دعوت دینے والے، بھلائی پہنچانے والے اور دوستی کا حق ادا کرنے والے جنہیں چنے ایسے ایماندار وفادار دوست ملا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے وفا دوست نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ویسے دوست نہیں۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کیوں بنایا، اور انہوں نے واقعی دوستی کا حق بھی ادا کیا۔ سب سے پہلے تو آپ کی پیدائش ایسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں، ایک بھی خدا کو ماننے والا نہیں، ایک بھی اسلام کو جاننے والا نہیں، ایک بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں، چاروں طرف کفر ہی کفر، تاریکی ہی تاریکی، ظلمت ہی ظلمت، اندھیرا ہی اندھیرا، چاروں طرف کفر کی آبادی ہے، کفر کی حکمرانی ہے، اسی کا بول بالا ہے، ایک بھی خدا کا نام لینے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے
पैगंबर को भेजना चाहा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी आमद से कबल जो उस वक्त हुक्मरानी थी, नाम आपने सुना होगा, उसका नाम क्या था? नमरूद। क्या था? नमरूद। याद रखिएगा। आजकल हमारे इस्लामी भाई इस्लामी हिस्ट्री से भी बहुत दूर है। इधर उधर की तो बहुत सारी बातें याद रहती है, लेकिन इस्लामी तारीख मालूम नहीं। जरूरी है याद रखना। और नमरूद कैसा बादशाह था? कोई छोटा मोटा बादशाह नहीं, एक मुल्क का बादशाह नहीं, 2 मुल्क का, 3 मुल्क का बादशाह नहीं, बल्कि पूरे दुनिया का, इस रोए जमीन के हर खित्ते का, मतलब यूं समझाए कि मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरी दुनिया का वो अकेला बादशाह था। तारीख बताते हैं कि इस पूरी दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। 4 बादशाह पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है। उन चारों में 2 मुसलमान हैं और 2 काफिर। मुसलमानों में एक हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जमाने के नबी भी हैं, अल्लाह के पैगंबर भी हैं, और इस पूरे रोए जमीन के तनहा बादशाह हैं। सिर्फ एक मुल्क, एक रियासत के बादशाह नहीं, पूरी दुनिया के अकेले बादशाह। और दूसरा वो मशहूर नाम जो बारहा आपने सुना होगा, लेकिन इस वक्त याद ना हो, लेकिन नाम बताते आपको याद आ जाएगा। और दूसरा वो खुश नसीब मोमिन जिसको सिकंदर बादशाह कहते हैं। कुरान ने जुल्करनैन के नाम से भी याद किया, सिकंदर बादशाह। ये 2 मोमिन थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर राजपाट हुक्मरानी की। और काफिरों में एक तो शिद्दात वक्त नसब, जिसको शिद्दात भी कहते हैं। और शिद्दात का जन्नत आपने सुना होगा कि शिद्दात ने ही दुनिया में जन्नत बनवाया था। तो शिद्दात और दूसरा यही नमरूद, ये 2 काफिर हुए जिसने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। 4 लोग पूरी दुनिया पर, और उन्हीं चारों में से एक हुक्मरान है नमरूद। नमरूद की हुक्मरानी है, चारों तरफ उसी का बोलबाला है। नजूमियों ने खबर दी बादशाह सलामत, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी आमद से आपके कसे हुकूमत हिल जाएगी, ईमान में सिलसिला पैदा हो जाएगा, आपकी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। नमरूद ने कहा वो बच्चा इस वक्त कहाँ है? नजूमियों ने बताया कि इस वक्त वो माँ के पेट में है, ये बाप के सल्ब में है इस वक्त। फिर दूसरे दिन नजूमियों ने खबर दी कि आज ही रात वो बच्चा अपने बाप के सल्ब से माँ के रहम में आ गया, बाप के सल्ब से माँ के रहम में आ गया। अब नमरूद कहने लगा कि जितने बच्चे पैदा हों तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। एक इब्राहिम को कत्ल करने के लिए न जाने नमरूद ने कितने बच्चों को कत्ल करवा दिया, हजारों हजार छोटे शेरखार बच्चों को कत्ल करवा दिया। फिर कहते हैं ना कि अल्लाह जिसकी हिफाजत करना चाहे, कौन है जो उसको मिटा सकता है, कौन है जो उसको कुछ कर सकता है। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली कि मैं हिफाजत करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने सख्त पहरा होने के बावजूद भी दुनिया में अब क़यामत हो गई।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو پھر نجومیوں نے خبر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا، جس کی عوض میں نہ جانے سینکڑوں بچوں کو، ہزاروں بچوں کو قتل کروایا گیا۔ لیکن پھر آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ محترمہ، جن کی ہمت و جرأت و سلام کہ کفر کے درمیان رہتے ہوئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی جگہ پہ رکھا کہ نمرود کے نجومیوں کو بھی کہاں خبر نہیں پہنچی کہ وہ بچہ اس وقت کہاں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے کھو میں غار میں حفاظت فرمائی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ روزانہ اتنا پڑھتے تھے جتنا عام بچہ ایک ہفتے میں پڑھا کرتا۔ آپ کا قد جلد بڑھا کرتا تھا، آپ بہت جلدی جوان یہ بڑے ہوتے تھے۔ جو دوسرے بچے ایک ہفتے میں پڑھتے ہیں، ایک دن میں آپ پڑھتے تھے۔ ایک ہفتے میں اتنا پڑھتے تھے جو دوسرے بچے ایک مہینے میں پڑھا کرتے تھے، اور ایک مہینے میں اتنا پڑھا کرتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں پڑھا کرتے ہیں۔ آپ کا قد بہت جلد بڑا ہوتا تھا، حتیٰ کہ 12 سال کسی غار میں آپ نے گزار دیا۔ 12 سال گزر گئے، لیکن 12 سال کے درمیان آپ اس وادی سے کبھی شہر میں نہیں گئے۔ جب جوان ہوئے، ہوشیار ہوئے، جب آپ کو عقل ہوئی، جب آپ کو ہوش ہوا، جب آپ سنبھل بوجھ کے لائق ہو گئے، تب پھر ایک دن آپ نے فرمایا، میری ماں ذرا بتا میرا خدا کون ہے؟ میرا خدا کون ہے؟ میرا مالک کون ہے؟ میرا پالن ہار کون ہے؟ میرا اللہ کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا میرا خدا تو تیرا باپ ہے، میرا خدا تیرا باپ ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تیرا باپ ہی تو کما کے مجھے کھانا کھلاتا ہے، تو جو کھانا کھلائے وہی تو خدا ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام 12 سال کی عمر میں ماں سے یہ سوال جواب ہو رہا ہے، جبکہ 12 سال کے درمیان کبھی مدرسہ نہیں گئے، کبھی مکتب نہیں گئے، کبھی اسکول کالج نہیں گئے، کبھی ادھر نہیں گئے، لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر عقل کہاں سے آئی اتنی؟ کوئی چھوٹی موٹی بات بہت بڑی بات کر رہی، رب کا پتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ماں سے پوچھتے ہیں، پھر میری ماں بتا میرے باپ کا خدا کون ہے؟ اب ماں سن کر کے لاجواب ہوئی، اپنے شوہر سے بتائی۔ تب جناب طارق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام ہے، جناب طارق نے فرمایا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کا نمرود کو انتظار تھا، جس کی تلاش تھی، اور یہی وہ بچہ قصر نمرود کو تباہ و برباد کرے گا۔ اس بچے کی حفاظت کی جائے، جہاں تک ممکن ہوا والدین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی، نمرود اور نمرود کے مخبروں سے دور رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اب آپ غور کریں، کفر کی بستی ہے اور چاروں طرف وہی ہے، ایک طرف تنہا ابراہیم ہے جو اپنے رب کا پتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جوان ہوئے، ماں سے جواب نہیں ملا، آئے شہر میں پہلی مرتبہ، جب پہلی مرتبہ شہر بابل میں قدم رکھا ہے تو کیا دیکھا؟ آئے یہاں تو لوگوں کا عجب منظر ہے، کہتے ہیں جتنی کنکر اتنے شنکر، جتنے کنکر اتنے شنکر، ہر آدمی کا عجب یہ خدا ہے۔ کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سمندر کو پوج رہا ہے، کوئی رات کو پوج رہا ہے، کوئی دن کو پوج رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، اور اس سے کچھ ایسے شرفیے بھی ہیں جس کو پوری اس کے جس کے پورے قوم اس کو پوج رہا ہے، اور وہ سلسلہ ایسے تھے جس کو نمرود کہا جاتا ہے۔ نمرود نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، اور کچھ لوگ تو نمرود کو بھی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالات کو دیکھا، منظر دیکھا، لیکن ابھی آپ کو سب سے پہلی تلاش کس چیز کی ہے؟ اپنے رب کا پتہ لگانا ہے،
अपने रब की तलाश है कि आखिर हमारा खुदा कौन है, हमें पैदा करने वाला कौन है, हमें दुनिया में भेजने वाला कौन है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले और शहर के लोगों के हालात को देखा, सोचा कि शायद ये लोग जिसको खुदा मानते हो यही खुदा सच्चा हो। चले एक समंदर किनारे, सोचा कि समंदर यही तो हमें पीने को पानी देता है, शायद यही खुदा हो। लेकिन अचानक देखा कि धूप की कड़कने पानी को जब सोखना शुरू किया तो फिर कहा ये कभी मेरा खुदा नहीं हो सकता है, ये धूप ये सूरज की किरण ही मेरा खुदा है। जब आपने सूरज को खुदा माना, शाम के वक्त सूरज ढलने लगा, सूरज के चेहरे पे काला नकाब पड़ने लगा, तब आपने फरमाया जो सूरज अपने चेहरे को छुपा ले वो मेरा खुदा कैसे हो सकता है। हत्ता के आपने फरमाया ये भी मेरा खुदा नहीं। फिर रात हुई, चांदनी रात में चांद पूरी आबोताब के साथ चमकना शुरू किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा यही मेरा खुदा। जैसे रात खत्म होने वाले थे, सुबह की सकादी नमदार हुए, चांद छुपने लगा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया जो छुप जाए वो खुदा कैसे हो सकता है। रात के चांदनी रात में आसमान पर टिमटिमाते सितारे, ये सितारे के ये चमक को देखकर आपने फरमाया ये मेरा खुदा हो सकता है। लेकिन जब वो भी छुप गया आपने फरमाया ये भी मेरा खुदा नहीं हो सकता है। हत्ता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा का पता लगा रही है। पता लगाते लगाते जब आगे बढ़े, देखा आग है, आग जल रही है। आपने सोचा ये आग हमें गर्मी पहुंचाती है, इससे आग से हम खाना बनाते हैं, इससे आग के जरिए तो हम अपना सारा काम काज करते हैं, यही मेरा खुदा है। लेकिन अचानक आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ। आपने फरमाया जो आग बुझ जाए फिर वो मेरा खुदा कैसे हो सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर चीज को जांचा, हर चीज को परखा, चांद सूरज जमीन आसमान रात दिन पेड़ पौधे पत्थर कंकर हर चीज को आपने देखा और हर चीज को आजमाया। लेकिन हर चीज ने आपको यही बताया ऐ इब्राहिम जो तूने मुझे खुदा समझा है मैं तेरा खुदा रहे। चांद ने भी यही कहा मैं तेरा खुदा रहे, सूरज ने भी यही कहा मैं तेरा खुदा रहे। और तेरा खुदा तो वो है जो हमारा भी खुदा है और तुम्हारा भी खुदा है। सबने यही कहा इब्राहिम खुदा वो है जो हमारा भी खुदा है तुम्हारा भी खुदा है और सबको पैदा करने वाला वही एक ज़ात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बात समझ में आ गई, पता मिल गया कि अल्लाह कौन है, हमें पैदा करने वाला कौन है। अब देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया, जनाब तारुक का इंतकाल बचपन ही में हो गया। आपके चचा है जिनका नाम आजर है, कुरान में आजर ही जिक्र आया है। यहाँ पे बहुत सारे अहले ये बहुत सारे लोग ये धोखा भी खा जाते हैं बैरिकट में, इस अख्तलाफ में और इस उलझन में ले जाना नहीं चाहूँगा आपको। आजर आपके चचा है और ये आजर बुत परस्त थे, पत्थरों को तराश करके मूर्ति बनाते और बाजारों में बेचा करते, उसी से जो दो पैसा हासिल होता तो अपना घर बार चलाते थे, उसी रोटी का इंतजाम करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो हर बाप को ये फिक्र होती है बेटा जवान हुआ बैठ के क्या करोगे, कम से कम मेरे काम में हाथ बटाओ, काम करो, मेहनत करो, मजदूरी करो ताकि दो पैसा आमदनी हो जिससे हमारा घर चले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से यही कहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे चचा ये माबूदाने बातें और मैं इसकी तिजारत करूं ये कैसे हो सकता है। अरे मैं तो इसको मिटाने के लिए आया हूँ, मैं इसको खत्म करने के लिए आया हूँ, मैं इसको तबाह करने के लिए आया हूँ और आप इसी की तिजारत के लिए कहते हैं। लेकिन ठीक है इसकी तिजारत मैं करूँगा, लेकिन ऐसी तिजारत करूँगा कि आप भी याद रखेंगे, ये माबूदाने बातें भी याद रखेंगे
रखे गا और जमाना भी याद रखेगा कि इब्राहिम ने जो तिजारत की है वो तिजारत का अंदाज और वो तिजारत का अंदाज क्या था और तिजारत करने का आपका तरीका क्या था। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम झोले में अपने चचा के बनाए हुए पत्थर की मूर्ति को लिए और लेने के बाद बाजार में चले बेचने के लिए, तिजारत करने के लिए। अब देखें आपकी तिजारत कैसे होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाजार के बीचों बीच चौराहे पर आपने अपनी झोली को रखा, दो खंभे को गाड़ा, दोनों में रस्सी को बांधा और लोगों को आवाज देना शुरू किया, ए बाजार के लोगों आ जाओ, आज तुम्हारे बाजार में एक ऐसा सौदागर आया है, एक ऐसा ताजिर आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया था, जो इससे पहले कभी नहीं आया था, ऐसा सामान लेकर के आया है जिससे पहले कभी इस बाजार में नहीं मिला करता था। आ जाओ मेरे पास, जिसको कामयाबी चाहिए मेरे पास आ जाओ, जिसको बेटा चाहिए मेरे पास आ जाओ, जिसको रोजी चाहिए मेरे पास आ जाओ, जिसको बीमारी से शिफा चाहिए मेरे पास आ जाओ, हर बीमारी का इलाज, हर बीमारी का इलाज मेरे पास आ जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, चौराहे पर खड़े होकर के ऐलान करते हैं, ऐ लोगों, तिजारत पुरानी है, तिजारत करने वाला ताजिर नया है, दुकान पुरानी है, दुकानदार नया है, सामान पुराना है, लेकिन बेचने वाला नया है। आ जाओ, तुम्हारे माबूदा ने बातें पुराने हैं मगर बेचने वाला इब्राहिम नया है, आ जाओ आ जाओ। आपने ऐलान किया, लोगों ने सोचा शायद के ये ताजिर कुछ अजीब लेकर के आया हो, कुछ अनोखा कुछ लेके आया हो, जो सबसे हटके हो, कोई नई चीज लेकर के आया हो, चलो चल के देखते हैं। अब लोगों की भीड़ लग गई, चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जमा हो गई। जमा होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने झोले से एक बुत को निकालते हैं और निकालने के बाद कहते हैं, ए लोगों, इसे तुम पहचानते हो, इसे तुम जानते हो, ये वो है जिसको तुम खुदा मानते हो, ये वो खुदा है जो तुझे रोजी देता है, जो तुझे खाना देता है, ये तुम्हें खाना देने वाला खुदा है। लेकिन सुनो, ये तुम्हारा अकीदा है, ये तुम्हारा ईमान है कि ये खुदा तुम्हें खाना देगा, ये खुदा तुम्हें रोजी देगा, ये खुदा तुम्हें पानी देगा। लेकिन सुनो सुनो, ये खुदा तो ऐसा है जो खुद खाता भी नहीं है, खुद पीता भी नहीं है, खुद ही मोहताज है। अरे ये खुदा तुम्हें क्या देगा, इसको घर ले जाओगे, इसके इंतजार में रहोगे, तुम भूखे मर जाओगे, लेकिन तुम्हें एक वक्त का खाना नहीं देगा, भूखे मर जाओगे इसके इंतजार में। ये मेरा खुदा खाना देगा, भूखे मर जाओगे, खाना नहीं मिलेगा। लेकिन सुनो, मैं उस खुदा को मानता हूँ जो सबको खाना खिलाता है, सबको रोजी देता है, मैं उस खुदा को। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बुत को उल्टा लटकाया और जैसे एक मुजरिम को पैर में रस्सी बांधकर लटका दिया जाता है, लटका दिया जाता है, तो सामने आपने रस्सी बांधा था, उस रस्सी में आपने उसको उल्टा बांध दिया, लटका दिया। अब दूसरा निकाला, निकालने के बाद दिखाया, कहा है लोगों, ये तुम्हारा खुदा है। जानते ये कौन सा खुदा है? या वो खुदा है जो पानी बरसाता है, बारिश करता है। अगर ये बारिश न करे तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, फिर तुम्हारी खेती नहीं होगी, फिर पानी पीने को नहीं मिलेगा। लेकिन सुनो, जो इसको खरीद कर अपने घर ले जाएगा और इससे पानी के इंतजार में रहेगा, पानी तो ना मिलेगा लेकिन तुम प्यासे मर जाओगे, तुम्हारी खेती बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सुनो, मैं उस खुदा को मानता हूँ जो हमें पानी देता है और हमें हमेशा के लिए जिंदा देता है, मैं उसको खुदा मानता हूँ। फिर आपने उसको भी उल्टा लटका के सामने रस्सी में लटका दिया। फिर आपने दूसरा बुत निकाला और दिखाने के बाद कहा, ये तुम्हें बच्चा देगा, ये तुम्हें बेटा देगा, ये तुम्हें बेटी देगा। ये बेटा बेटी देने वाला खुदा है, ये बेटा बेटी देने वाला खुदा है। इसे देखो, इस्लाम गौर से देखो, ये बेटा बेटी देने वाला खुदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो,
तुम अपने घर में इसे जब ले जाओगे ना तो फिर तुम्हारे घर में बेटा बेटी तो नहीं होगा, इसके इंतजार में न होगे, लेकिन बेटा बेटी नहीं होगा, बगैर बेटा बेटी के तुम बांधे औलाद बन जाओगे। लेकिन सुनो, मैं उस खुदा को मानता हूँ जो खुदा अपने हर बंदे को और अपने हर बंदे को औलाद अता करता है, औलाद देता है, बेटा भी देता है, बेटी भी देता है, एक भी देता है, दो भी देता है, जितना चाहे अनगिनत अता करता है। फिर आपने उसको भी उल्टा लटका दिया कि मुझे नहीं पीता। फिर एक और पुत्र निकालने के बाद फरमाया, इसे जरा गौर से देखो, यह तुम्हें बीमारी से शिफा देगा, यह बीमारी से शिफा देगा। जो इसको खरीद कर अपने घर ले जाएगा और यह सोचेगा कि मुझे बीमारी है, मैं बीमार हूँ, मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, इसके इंतजार में रहेगा, बीमारी बढ़ती चली जाएगी, वो बीमार होता होता मर जाएगा, लेकिन इससे कभी फायदा नहीं पहुंचेगा। सुनो, मैं उस खुदा को मानता हूँ जो खुदा बीमारी देता है तो फिर उसका शिफा भी अता करता है, फिर बीमारियों को दूर भी करता है, मैं उसको खुदा मानता हूँ। फिर उल्टा लटका दिया गया। बाजार में आप एक अजीब तरीके से तिजारत कर रहे हैं, ऐसी तिजारत कर रहे हैं कि जिनका जमीन जिंदा था उसी वक्त अपने सर को झुका लिया और जाने के बाद कहा, इब्राहिम हम आपकी बात समझ गए, ईमान है। पहले तबलीग है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुफ्र की बस्ती में, कुफ्र के शहर में, जहाँ पर एक भी हिमायत नहीं, एक भी सपोर्टर नहीं, एक भी साथ देने वाला नहीं, तनो तन्हा इब्राहिम अपने रब की जात पर भरोसा किए हुए बाजार में, कुफ्र के शहर में और कुफ्र के बाजार में जब आपने ऐलान किया है, एक वहदानियत का ऐलान किया है, एक वहदानियत का ऐलान किया है, जब लोगों को बताया है तो माबूदाने बात जो उनसे खुदा थे उसकी भी हकीकत को उजागर कर दिया और अपने हकीकी खुदा के बारे में भी आपने समझा दिया। मानने वाले लोग मान लिया, ना मानने वाले लोग चले गए। लगातार इसी तरीके से आप हर बाजार में जाते और तिजारत करते। एक दिन आपके चचा आजर ने कहा, बेटा जिस तरीके से तू तिजारत कर रहा है ना, ऐसे में तो फिर हम कभी एक भी पुत नहीं बेच सकते हैं, फिर हम भूखे मर जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को क्या प्यारा जवाब दिया, मेरे चचा तो मैं कौन बरखा इसकी तिजारत करने के लिए जाता था, कौन इससे पैसा हासिल करने के लिए जाता था, आपने तिजारत के लिए उभारा, मैं तिजारत करने के लिए गया, लेकिन तिजारत ऐसा किया जो आखिरत का सौदा कर लिया, आखिरत का सौदा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया। अब ये आपका इस ऐलान का, आपका इस ऐलान का पूरे शहर, पूरे इलाके में, नगर नगर, जगह जगह में प्रचार होने लगा कि एक इब्राहिम नाम का नौजवान आया है जो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, बुरा भला कहता है, और वो न जाने ऐसे खुदा के बारे में बताता है जिसको हमने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं। अब यह खबर फैलते फैलते हत्ता कि नमरूद तक पहुंच गई, कसरे नमरूद में यह खबर फैल गई, पहुंच गई। अब क्योंकि अल्लाह तबारक ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के पास भेजना था, तो भेजने के लिए एक जरिया भी तो होना चाहिए। प्रचार के जरिए जब खबर पहुंची, नमरूद को खबर हुई, उसी दरमियान उन लोगों का सालाना बहुत बड़ा एक त्योहार था, जिससे हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार कल होने वाला, बकरीद, बहुत बड़ा त्योहार हमारा होने वाला है जो हम मनाने वाले हैं। उनका भी एक त्योहार होता था साल में, जो पूरे लोग अपने शहर बस्ती को छोड़कर जाते थे और दिन भर मस्ती करते थे और खेल कूद करते, उसके बाद फिर शाम को वापस आ जाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी कहा, आप भी चलिए। आपने फरमाया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। शहर के लोगों ने अपने शहर में एक बहुत बड़ा जो है बुतखाना तैयार कर रखा था, बहुत बड़ा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आपने देखा सारे लोग चले गए,
पूरी बस्ती खाली है। आप गए थे खाने, जाने के बाद उनके सामने प्रसाद को देखा, उनके सामने मिठाई को देखा, उनके सामने फल फ्रूट को देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए माबूदाने बातें, देखो तो तुम्हारे अकीदतमंद कैसे तुम्हें खाना देके गए हैं, खाती क्यों नहीं हो? हाथ में लिए उनके मुंह में ठूसा शुरू कर दिया, खाओ इसको। और तुम्हारे मानने वाले चाहने वालों ने देकर गया, खाओ इसको। लेकिन जरा गौर करें, पत्थर के कभी खाने वाले नहीं खाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको तो से आपका काम करना शुरू किया, कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो जवाब दो। लेकिन वो बेजान बोले तो कैसे बोले? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि तुम खुदा नहीं, तुम माबूद नहीं। अब आप जो कांधे पर कुल्हाड़ा तीसा लेकर गए थे, अब उस तीसे से, कुल्हाड़े की तीसा बोलते, उस तीसे से आपने अब तोड़ शुरू कर दिया। किसी का नाक तोड़ा, किसी का कान काटा, किसी का होंठ काटा, किसी का चेहरा काटा, किसी के हाथ को तोड़े, किसी के पैर को तोड़े। आपने सबको तबाह बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। जो सबका सरदार, सबका सरदार, सबसे बड़ा जो था, वो तीसा कुल्हाड़ा उसके कांधे पर रख दिया, कांधे पे रख दिया। उसके बाद से निकल गए। शाम के वक्त जब लोग अपने तकलीफ से वापस आए, जब गए देखा मेरे खुदा का तो बुरा हाल है। किसी का कान कटा, किसी का नाक कटा, किसी का दिल कटा, किसी का दांत फूटा, किसी का पेट फटा, किसी का पेट फटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। ये बुरा हाल किसने किया? लेकिन शहर वाले समझ गए ये हो न हो इब्राहिम का ही काम होगा, इसलिए कि यहाँ पर इस बस्ती में, इस सरजमीन पर मेरे खुदाओं को बुरा भला कहने वाला इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। यही वो है जो मेरे खुदाओं को बुरा भला कहता है, इब्राहिम के अलावा कोई नहीं होगा। अब ये शिकायत पहुंची नमरूद के पास। नमरूद बादशाह जानते हैं कि इब्राहिम ने मेरे खुदाओं का बुरा हाल किया है। फौरन नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाजिर करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद के सामने पेश किया गया। अब ये हर काम में हिकमत रब्बी है, हर काम में रब की हिकमत है। अल्लाह तबारक तआला ने इसके जरिए नमरूद के पास आपको पहुंचाया। जाहिर बात है, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर में अगर कोई बहुत बड़ा रईस आदमी हो, बहुत बड़ा आदमी हो, तो क्या छोटे आदमी की पहुंच वहां तक हो सकती है? नामुमकिन। तो अब वहां तक पहुंचने के लिए कोई जरिया तो होना चाहिए, बहाना तो होना चाहिए। अब नमरूद जो के छोटा मोटा तो आदमी है नहीं, इस पूरे रोए जमीन का बादशाह भाई। अब वहां तक इब्राहिम का पहुंचना इतना आसान तो है नहीं। अब पहुंचे कैसे? तो अल्लाह तबारक तआला ने ये रास्ता बनाया, ये असबाब पैदा किया। इसके जरिए अल्लाह ने नमरूद के सामने आपको भेजा। अब नमरूद के सामने गए, अब नमरूद से मुनाजरा शुरू हुआ, नमरूद से बातचीत शुरू, मुनाजरा शुरू। अब नमरूद ने कहा मेरे खुदाओं को बुरा भला और ये तहस नहस क्यों किया? आपने फरमाया अगर वो तुम्हारा खुदा है तो जो सबसे बड़ा सरदार उससे जाके क्यों नहीं पूछ लेते? अब उससे जरा पूछ, वही बताएगा कि तुम्हारे माबूदों को किसने तोड़ा, किसने मारा, किसने पीटा। पूछ जरा उससे। नमरूद से भी आपने कहलवाया, इकरार करवाया। नमरूद ने इकरार किया कि वो तो बेजान बोलेगा कैसे, वो बेजान बोलेगा कैसे, वो बोलेगा कैसे, वो बोल नहीं सकता है। कहा क्यों? तुमने तो उसको अपना माबूद बनाया था, उसकी इबादत की थी, उसको सजदे किए थे, फिर वो बोलेगा क्यों नहीं? कहा नहीं बोलेगा तो उसने क्या होगा? कहा वह हिल नहीं सकता है, अपने जिस्म से मक्खी नहीं भगा सकता है, फिर वो कुल्हाड़ा कैसे चला सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इकरार करवाया। नमरूद ने इकरार किया कि वो बेजान पत्थर ना तो बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, लेकिन जिसका दिल अंधा हो जाए फिर उससे ईमान कहाँ नसीब होता है।
ایمان کہاں نصیب ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتایا اس نے انکار کیا، اس کے بعد پھر فرمایا ذرا بتاؤ کہ تم مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اور تجھ کو خدا، میں اور تجھ کو خدا، یہ تو ناممکن ہے، تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، پھر خدا کیسے؟ خدا تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، خدا تو وہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا خدا تمہارا کیسا؟ آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ بھی کرتا ہے اور زندے کو مردہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے چراتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو قیدی کو بلائے گئے، جس قیدی کا یہ رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا اسے نمرود نے سزا دے کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جسے سزا ہونے والے تھے اسے رہا کر دیا۔ نمرود نے کہا دیکھا میں نے چٹکے بجاتے کیسے مردے کو زندہ، زندے کو مردے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹا رکا بھی ہم بتاتے ہیں، عقل سے ابھی تک کام چل رہا تھا، اب ایسی عقلی سوال کرتے ہیں جو قیامت تک میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ جب مردے اور زندے کو نمرود نے اپنے طور پر ثابت کیا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سنو میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے پچھم میں سورج ڈبوتا ہے، اگر تو واقعی میں خدا ہے پچھم سے سورج نکال اور پورب میں ڈبا دے۔ نمرود ادھر دیکھا ادھر دیکھا، قرآن نے کہا تب وہی الذی کفر، نمرود ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور وہ سمجھ میں پڑ گیا میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو میرے بس کی بات نہیں، چاند پر تو میری حکومت نہیں، آسمان پر میری حکومت نہیں، سورج پر میری حکومت نہیں، اب یہ کیسے؟ نمرود لاجواب ہو گیا، اب لاجواب ہوا۔ اس کے بعد بھی جانتے ہیں آخرکار نمرود نے یہی کہا آپ نے جرم کیا، جرم کیا ہے اس کی سزا ملے گی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس بت کو توڑنے کے جرم میں ایک بہت بڑا آتش کدا تیار کیا گیا اور اس آتش کدا میں مہینوں بھر لکڑیاں جمع کیا گیا اور اس کی آگ جب بھڑکایا گیا تو اس کے شعائیں آسمان سے بات کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیک کے ذریعے اس میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے یہ آگ میں گئے اللہ کا حکم ہوا آگ خبردار میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کا حکم ہوتے آگ چاروں طرف بدستور جلتا رہا، لیکن جس جگہ پر ابراہیم ہے وہاں پر اس ایریا میں اس جگہ پر وہ جگہ اب وہ ایک پھولوں کا باغ ہو گیا، سبحان اللہ، پھولوں کا باغ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے۔ نمرود نے جب دیکھا وہ تو ابھی بھی زندہ ہے، کہا ابراہیم چاروں طرف آگ چل رہی ہے، ابھی بھی تو باہر نکل کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام لیا، بسم اللہ پڑھا اور پھر آگ سے باہر نکلے، پھر آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ نمرود اس وقت اب ایمان لانے والا تھا، اس کا دل اب دھیرے دھیرے جھکنے والا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب دل اندھا ہو جائے نا تو پھر نصیب کہاں ہوتا ہے، پھر وہ ایمان لاتے لاتے پھر وہ چھوڑ گیا، پھر وہ چھوڑ گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ قوم بے وفا، یہ قوم بے وفا ہے، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے بہت سمجھایا بہت بتایا لیکن یہ قوم ماننے کے لیے تیار رہے، جب قوم ماننے سے انکار کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل سے ہجرت کر گئے، فلسطین چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد پھر آپ خوش و خرم عیش کی زندگی گزارنے لگے، تبلیغ الہی میں لگ گئے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے لگے، وحدانیت کا اعلان کرنے لگے۔ میرے نوجوانوں ذرا آپ غور کریں، ہماری بستی ہے، ہمارا علاقہ ہے، اب یہاں بتائیں جتنے بھی ہم سب بیٹھے ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ ایمان والے ہیں؟
वही बस्ती हमारे ईमान वालों की है। अब ईमान वालों की बस्ती में हमारा हाल क्या है, जरा आप इधर आप एक नजरिया डाल कर फिर देखा, अपने आप को जरा सोचा कि हम ईमान वालों की बस्ती में रहते हैं, हमारी हिमायती भी है, हमारे सपोर्टर भी है, हमारे साथी भी है, हमारी जमात भी है, हमारे इतने लोग हैं जो खुदा को मानने वाले हैं, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, एक दिन पर चलने वाले हैं। मगर आलम यह है कि हमारे नौजवानों से इबादत छूट रही है, मस्जिदें वीरान हो रही है, रोजे छूट रही है, इबादतें छूट रही है, और हम धीरे धीरे अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। हत्ता कि हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को आज के दौर में आज भी डर सता रहा है कि अगर दाढ़ी रख लूंगा कहीं दाढ़ी के नाम पर मार दिया न जाओ, टोपी पहनकर कहीं टोपी के नाम पर मार दिया न जाऊं, कहीं इस्लामी लिबास के नाम पर मार दिया न जाऊं, कहीं मस्जिद में जाने के नाम पर मार दिया न जाऊं, ये डर सताता है। लेकिन जरा फिक्र इब्राहिम को देंगे, जरा सीरत इब्राहिम को देंगे, जहां पर अपना कोई नहीं है, सब का सब पराया है, कुफ्र की बस्ती है, कुफ्र की शहर है। और ऐसे शहर में इब्राहिम तनो तनहा खुदा का नाम लेकर जब खड़े होते हैं, वहदानियत का ऐलान करते हैं, तो फिर उन्हीं कुफ्र की बस्ती में से आपके हिमायती भी पैदा हो जाते हैं, आपके सपोर्टर भी आ जाते हैं, और धीरे धीरे एक इब्राहिम से एक जमात तैयार हो जाती है, एक जमात तैयार हो जाती है। आज इतनी तादाद हो के भी हम डरते हैं नमाज पढ़ने से, इबादत करने से, दाढ़ी रखने से, टोपी पहनने से, इस्लामी लिबास पहनने से। जरा गौर करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तन्हा कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा है। आखिर हमारा भरोसा कहाँ गया, हम भरोसा क्यों नहीं करते? क्या हमारी तबलीग ये है, क्या हम मोबाइलों में व्यस्त है, या इधर उधर की तारीफ पढ़े, या इधर उधर का वक्त को जाया करे, या हमारी तबलीग है? जरा तबलीग इब्राहिम की देखा कि कुफरी की बस्ती में आपने कैसे तबलीग की, तो उनके दिल को ऐसे तराशा कि उनके दिल को भी तराश करके मम बना दिया, अपना दीवाना बना लिया, और उनको भी अपना बना लिया है। वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी याद में हम सब बैठे, उनकी मोहब्बत में बैठे, महफिल सजाए हैं, तो हमें कुछ सीखना भी चाहिए, कुछ फायदा उठाना चाहिए। सिर्फ महफिल सजा लेने से कोई फायदा नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी मांगा सब आपने पेश किया। इंसान के लिए आखिरी बात है, अर्ज कर रहा हूँ, हर इंसान के लिए दो चीजें बहुत महबूब होती है, बहुत अजीज होती है। जानते हो क्या? एक अपनी जान और एक अपनी औलाद, है कि नहीं? हर आदमी को दो चीज बहुत प्यारी है और दोनों की हिफाजत करना चाहता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ऐसी आजमाइश की, ऐसा इम्तहान लिया कि सबसे पहले तो खुद इब्राहिम की जान को मांगा। इब्राहिम, क्या मेरे लिए जान दे सकता है? इब्राहिम ने फरमाया, मेरे खुदा, क्यों नहीं? कहा इब्राहिम वाकई में? कहा मेरे खुदा वाकई में, अगर यकीन न हो तो आजमा लिया जाए। इब्राहिम जान देने के लिए तैयार है। फिर अब ने फरमाया ठीक है, तो आज आतिशे नमरूद तैयार है, आतिशे नमरूद तैयार है, चलो अब अपनी जान दे करके बताओ। हजरत इब्राहिम ने वो भी दे करके बताया, मेरे मौला, मेरी जान तेरे लिए हासिल है, मेरी जान हासिल है। आप जब अपनी जान की कुर्बानी दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खिलत का ताज पहना दिया। सुभान अल्लाह, सच्ची दोस्ती का ताज आपको पहना दिया, जान की कुर्बानी में कामयाब हो गए। अब दूसरी कुर्बानी आई औलाद की। आखिरी वक्त में औलाद मिली। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम, क्या तू औलाद को मेरे लिए दे सकता है, कुर्बान कर सकता है? इब्राहिम ने फरमाया, क्यों नहीं मेरे मौला, ये तेरी ही नेमत, ये तेरा ही दिया हुआ है, क्यों नहीं, मैं यकीनन देने के लिए तैयार हूँ। कहा अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो चलो और मीना के मैदान में अपने बेटे को ज़िबह करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वाकई में ज़िबह करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आपके तमाम वाक़ियात को बयान फरमाया और फरमाया, इब्राहिम, तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है और हमने
ऐसा सिलाब को दिया, अच्छे लोग नेकोकार लोगों को हम ऐसा ही सिला देते हैं। इस्माइल के बदले में एक जन्नती मेढा दे दिया गया है। फिर अल्लाह के इरशाद फरमाता है इब्राहिम आप ना घबराए, आपने जो भी कारनामे अंजाम दिए मैं आपके हर याद को ऐसा महफूज रखूंगा, ऐसा महफूज रखूंगा कि राह की दुनिया तक कयामत तक ईमान वाले जितने होंगे वो सब आपकी याद को ताजा करते रहेंगे। यही वजह है कि हज करने के लिए जाते हैं। हज क्या याद ही तो है, सफा मरवा पे दौड़ना, हजरत इब्राहिम ये हाजरा की याद है, जमजम का पीना इस्माइल की याद है, और भी दीगर जितनी भी चीजें हैं सब याद ही तो है। कहीं पे हजरत इब्राहिम की याद है, कहीं पे मेरे आका की याद है, हर जगह याद ही है। और अल्लाह ने उसको एक इबादत बना दिया, उस यादगार का मजमूए में एक इबादत बना दिया और फरमाया ये तुम्हारे लिए वाजिब हो गया कि जब तक अदा नहीं होगा तेरा हज कबूल नहीं होगा। उसी तरह कुर्बानी के अंदर है, कुर्बानी क्या ये भी तो एक याद ही है। बाप बेटे ने जो कुछ खुदा की बारगाह में पेश किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ लोगों अगर जर्रा बराबर तुम्हारी कुर्बानी में कोई शराइत में कमी रह गई या किसी मसाइल में कमी रह गई तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये कोई मामूली याद नहीं, बहुत बड़ी यादगार चीज है। लिहाजा हमारे लिए ये इबादत बना दिया गया। अब अल्लाह का फजल देखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुर्बानी के जरिए अपना कुर्ब अता फरमाया और फरमाया सुनो हर काम मेरी रजा के लिए करना, खुदा की रजा के लिए करना। अगर जर्रा बराबर इसमें कमी बेशी किया तो ये सब बेकार है। लिहाजा हमारा हर काम खुदा की रजा के लिए होना चाहिए, ना कि अपने दिल की रजा के लिए, अपने मन की रजा के लिए होना चाहिए। बेहतरीन से बेहतरीन जानवर भी पेश करे और जो कुछ भी हो कोशिश करे कि अपने रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करे, दुआ करे कि अल्लाह मैंने जो कुछ भी पेश किया है इस अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो खाने का नाम कुर्बानी नहीं है, ये तो एक रस्म बना हुआ है और ये भी अल्लाह का एहसान माने रसूल पाक का सदका है कि हमारे नबी से पहले जितने भी नबी आए उनके दौर में जो कुर्बानी होती थी खाने को नहीं मिला करता था, खाने को नहीं मिला करता था। लेकिन ये मेरे आका का सदका है, अल्लाह ने महबूब के सदके में मेरे नबी के सदके में हमें कुर्बानी भी कबूल कर लिया और खाने को भी दे दिया। कहा लो और इसको खाओ, लेकिन याद रखना खुदा की बारगाह में तुम्हारा जानवर नहीं जाता है, तुम्हारा पैसा रुपया नहीं जाता है, तुम्हारे दिल, तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी अकीदत यही जाती है। सच्ची नीयत से रब की बारगाह में कुर्बानी पेश कर। अब चले चलते चलाते चंद अशआर मुनक़बत के पेश करता हूँ, सुनेंगे, उसके बाद फिर हजरत का खिताब होने वाला है। चंद अशआर पेश करता हूँ, मोहब्बतों के साथ समाप्त कीजिए और ये बेदारी पैदा लाइए, बेदारी पैदा लाइए, उसके बाद फिर हजरत का खिताब होने वाला है। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ के सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मुहम्मद कमात मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ही चंद अशआर आपके सामने पेश करो। एक मरतबा मोहब्बत से कहिए तो सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाइए। कलमाए हक जब सुनाया, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। कलमाए हक जब सुनाया है खलीलुल्लाह ने, कलमाए हक जब सुनाया, कलमाए हक जब सुनाया है खलीलुल्लाह ने, कलमाए हक जब सुनाया, कलमाए हक जब सुनाया, अरे कलमाए हक जब सुनाया है
ظلم کو جڑ سے مٹایا ظلم کو جڑ سے مٹایا ہے خلیل اللہ نے ظلم کو جڑ سے مٹایا چل دیے بے باک ہو گئے آتش نمرود میں چل دیے بے باک ہو گئے چل دیے بے باک ہو گئے آتش نمرود میں چل دیے بے باک ہو گئے چل دیے بے باک ہو گئے چل دیے بے باک ہو گئے آتش نمرود میں آتش نمرود میں عشق کا مطلب بتایا عشق کا مطلب بتایا اے خلیل اللہ نے عشق کا مطلب بتایا کفر کے ماتھے پہ گارا جس نے وحدت کا ستون کفر کے ماتھے پہ گارا کفر کے ماتھے پہ گارا جس نے وحدت کا ستون پگارا جس نے وحدت کا سکون اہل باطل کو جھکایا اہل باطل کو جھکایا ہے خلیل اللہ نے اہل باطل کو جھکایا ہر واقعات کی روشنی میں یہ شعر آپ سماعت کرتے چلا جان و تن اولاد و سوزا جان بولتا اپنی جان تن مانے بدن اولاد تو اولاد اور زوجہ مانے بیوی جان و تن اولاد و سوزا سب سپرد رب کیے یہ ہجرت کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مکہ میں جو بیابان ریگستانی علاقے میں تنہا جو چھوڑ کے آئے تھے اس تاریخ کی روشنی میں یہ شعر ہے کہ جان و تن اولاد سوزا جان و تن اولاد سوزا سب سپرد رب کیے جان و تن اولاد سوزا جان و تن اولاد سوزا جان و تن اولاد سوزا سب سپرد رب کیے سب سپرد رب کیے شہر مکہ کو بسایا شہر مکہ کو بسایا ہے خلیل اللہ نے شہر مکہ کو بسایا قربانی کے تعلق سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے کہ اقتضاء رب کی خاطر
سر جھکاتا ہے پسر بولتے ہیں بیٹے کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری چلائی تھی دوسرا بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا؟ نابغار فرار. ارے میرا باپ ہم کو ایک ذبح کرنے کے لیے لے جائے, وہ بھاگ جاتا. وہ اسماعیل ہی تھے جنہوں نے فرمایا ابا پھر دیر کس بات کی ہے, جو حکم ہوا وہ پورا کیجیے, پورا کیجیے. قرآن نے کیا ہی خوبصورت بیان کیا, اس کو شاعر نے اپنے شعر میں پرویا ہے. ایک رب ایک رب تعالی ایک رب کے خاطر سر جھکاتا ہے پسر. ایک رب کے خاطر ایک رب کے خاطر رب کے خاطر سر جھکاتا ہے پسر. سر جھکاتا ہے پسر. واہ کا فرزند پایا. ابھی بھی خاموش ہے. ارے کہیے کہ سو رہے ہیں, سوئیے گا تو پھر حضرت کا خطاب کیسے ہوگا؟ محفل آپ نے سجائی ہے تو بیدار رہیے, تب حضرت کا خطاب ہوگا. ورنہ پتہ چلا کہ قبرستان گئے تھے اور قبرستان سے واپس آ گئے. تو قبرستان نہیں, اس کو جو ہے زندہ آبادستان بنائیے. ٹھیک ہے, ایک مدعا کہیے تو محبت سے سبحان اللہ. ہاں, زندگی پیدا کیجیے اور بیداری کا ثبوت دیجیے. ایک رب کے خاطر سر جھکاتا ہے پسر. ایک رب کے خاطر سر جھکاتا ہے پسر. واہ کا فرزند پایا ہے خلیل اللہ نے. پیش کر رہا ہوں. زلزلہ ایمان باطل میں تصدق آ گیا. زلزلہ ایمان باطل زلزلہ ایمان باطل میں تصدق آ گیا. زلزلہ ایمان باطل زلزلہ ایمان باطل زلزلہ ایمان باطل میں تصدق آ گیا. میں تصدق آ گیا. حق کا جب نعرہ لگایا, حق کا جب نعرہ لگایا ہے خلیل اللہ نے. حق کا جب نعرہ لگایا ہے خلیل اللہ نے. ظلم کو جڑ سے مٹایا. حضرات, اب میرا وقت مکمل طور پر پورا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, لہذا اب میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.